Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the project management, and today we have first video lecture and topic is project cycle management. Okay, so first of all we have definition of project cycle management, a logical sequence in which the projects are identified, prepared, approved and implemented is called project cycle. Basically it's a cycle which includes the following stages: identification of project, preparation, approved and implementation. So it's a sequence wise cycle which include these things. This is what we call as a project cycle management. It is an approach in project management used to guide management activities and decision making procedures during the life cycle of a project, from the first idea until the last ex post evaluation. Okay, so basically एक लाइफ साइकिल होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, फ्रॉम इनिशियल आइडिया till the last evaluation of any project, which include different decision making and management activities. These all are included in project management. Okay, themes in a project management, project cycle management. Okay, within all institution the cycle share three main themes. जितने भी institution है, जितने भी आपके projects है different institutions के, they all include the main three themes. Okay, number one is the cycle defines the key decisions, information, requirements and responsibilities at each phase. Okay, cycle का काम क्या? It defines your key decision, how you have to make any decision, at which time you have to make a decision, at which direction you have to make a decision, information requirement and responsibilities at each phase. So ये आपका मेन थीम हो गया. एक दूसरा क्या है? The phases in the cycle are progressive. Each phase need to be completed for the next to be tackled with success. Okay, you have to complete one phase and then you have to move forward. Okay, पहले एक फेज को मुकम्मल करना होता है, फिर फेज बाय फेज वाइज आपने जाना होता है. ओके, the cycle draws on evaluation to build experience from existing projects into the design of future projects. Sometime आपका जो cycle है, it also depends on the evaluation of the previous project. जो आपने projects किए हुए हैं या जो आप अभी existing कर रहे हो, उससे जो है ना आप ड्रॉ करते हो, उससे आप जो है ना एक आइडिया लेते हो ताकि नया जो आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स करते हो उसी का सेम डिजाइन आप बना सको. ओके, उसके बाद है स्टेजेस इन प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट. देयर आर 8 ब्रॉड स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल. किसी भी प्रोजेक्ट साइकिल का जो है ना 8 ब्रॉड स्टेजेस आते हैं, जिसमें पहले पहले क्या है? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन है, प्रोजेक्ट अप्राइजल है, प्रोजेक्ट अप्रूवल है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, मॉनिटरिंग, कंपाइलेशन, completion and evaluation. These are all stages, are different stages है. Okay, okay, उसके बाद प्रोजेक्ट साइकिल. उसमें पहले पहले क्या आता है? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, देन वी मूव फॉरवर्ड फर्दर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, देन प्रोजेक्ट अप्राइजल एंड अप्रूवल. उसके बाद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग हो गया, एंड देन प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड इवैल्यूएशन. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट साइकिल, जिसमें ये 5 स्टेजेस आते हैं. ओके, so number one is project identification. The possible sources of project identification are development plans, sector surveys, elected representatives, immediate nature, उसके बाद expansion of ongoing programs. तो आपने एक प्रोजेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपने कैसे जो है ना एक प्रोजेक्ट की जरूरत कैसे पड़ती है, क्योंकि कभी कभी आप जो है ना डेवलपमेंटल सेक्टर में काम करते हो, कभी आप जो है ना सेक्टर सर्विस करते हो, उसमें आपकी लेट सपोज एक्सपेंशन ऑफ ऑनगोइंग प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि जब आप कोई प्रोग्राम चलाते हो उसको आप एक्सपेंड करते हो, या कभी कभी ऐसे होता है कि डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बनाए जाते हैं, कभी कभी हम सर्विस करते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स. तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के प्रोजेक्ट को मालूम करने के लिए, उसकी ज़रूरत के लिए ये डिफरेंट आपके पास रिसोर्सेज है जिससे आप जो है ना किसी प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करते हो. उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? उसके बाद हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट अप्राइजल. सो व्हाट इज प्रोजेक्ट अप्राइजल? Critical examination of the project from all aspects is called appraisal. Okay, analysis of prospective cost and benefit that leads to a desirability for committing resources. Okay, अप्राइजल में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं अब एक प्रोजेक्ट को, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रोजेक्ट को हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स से देखते हैं कि ये मौजू होगा या नहीं होगा. फिर हम उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट देखते हैं कि इस पे खर्चा क्या आएगा और इसके हम फवायद कितने लेंगे. अगर खर्चा ज्यादा आता है और फायदे कम होते हैं तो तब भी हम नहीं करते फिर.
तो बेसिकली प्रोजेक्ट अप्राइजल इज अ मेन, आपका जो मेजर एक स्टेप है वो है। इट कैरी आउट 2 स्टेजेस, और ये फिर हम 2 स्टेजेस में करते हैं। एक में हम इंटरनल अप्राइजल्स करते हैं और दूसरे में हम एक्सटर्नल अप्राइजल करते हैं। ओके, इंटरनल मतलब आप जो है ना एक प्रोजेक्ट को अंदर से फिर देखते कि इस पे कॉस्ट कितना आएगा, इसके बेनिफिट। फिर एक्सटर्नल, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, मतलब सोसाइटी पे इसके क्या असरात होंगे, क्या क्या फायदे ये पहुंचाएगा। उसके बाद है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, ये हमारे पास अप्राइजल हो गया। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इंटेल्स इन इंटेंस एक्टिविटीज एंड अ वैरायटी ऑफ फिजिकल वर्क। इसमें फिर आप वो चीज प्रैक्टिकल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। जो प्रोजेक्ट आपने जो है ना बना लिया, अप्रूव कर लिया, उसको आप प्रैक्टिकल आप शेप दे रहे हो। Implementation of activities and financial management should be undertaken in accordance with the all established guidelines, procedure and regulation guiding the project. Okay, ये जितने भी प्रोजेक्ट के जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जितने भी आपकी एस्टेब्लिशमेंट गाइड्स है, प्रोसीजर्स है, रेगुलेशन है, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एजेंसीज थ्रू ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप प्रोजेक्ट। आपने डिफरेंट स्टाफ हायर किया होता है, वो उनका काम है कि वो आपके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर। जिस तरह हम डिफरेंट एजेंसीज को प्रोजेक्ट्स देखते हैं, तो वो एजेंसीज क्या काम करते हैं, वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। अच्छा, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में फिर क्या आता है? इट इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन थ्रू वेल डिफाइंड इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स इन लोगों ने रखे होते हैं, उस इंडिकेटर के लिहाज से ये देखता है कि जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हुआ है ये कितना सही है, मतलब इट गॉट द रिक्वायर्ड क्वालिटी और नॉट। जो हम हमारा क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, जो हमने एक गोल सेट किया हुआ, आया ये गोल अचीव किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स ऑफ मॉनिटरिंग क्या होते हैं? इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। जब आप उसको मॉनिटर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को, तो उसका फायदा ये हो ना कि जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो कहते हैं कि यार मॉनिटरिंग हो रही है तो अच्छा काम करो, इफेक्टिव काम करो। टाइमली कंप्लीशन विद इन अप्रूव कॉस्ट, ये आपके बेनिफिट्स हो गए मॉनिटरिंग के। अच्छा, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, फिर उसके डिफरेंट मॉनिटरिंग के टाइप्स है। जिस तरह फाइनेंशियल मॉनिटरिंग हो गया, फिजिकल क्वांटिटेटिव मॉनिटरिंग और क्वालिटेटिव मॉनिटरिंग हो गया। ओके, दिस इज मॉनिटरिंग। अच्छा, लेवल ऑफ मॉनिटरिंग क्या है? इंटरनल मॉनिटरिंग हो गया, एक्सटर्नल मॉनिटरिंग हो गया। उसके बाद एक की मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स। अच्छा, मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं? एलोकेशन ऑफ फंड्स, पहले हम फंड्स देते हैं, रिलीज ऑफ फंड, वो फंड कैसे रिलीज हुए, कैसे एलोकेट हुए, टाइम क्या है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, टेक्निकल पैरामीटर्स उन्होंने क्या है, फिजिकल प्रोग्रेस क्या है। ये आपके डिफरेंट मॉनिटर्स के इंडिकेटर्स है जिसको आप देख के किसी भी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, it is a report submitted immediately after the completion of the project. Major emphasis of the project of this report is on the following. अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है फिर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम कंप्लीशन रिपोर्ट कहते हैं। उसमें जो है ना दो चीजें होती है, अचीवमेंट अगेंस्ट टारगेट रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके रिजल्ट होते हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस विच इज बजट फॉर द प्रोजेक्ट, आपने असल में खर्चा कितना किया इस पे और ये बजट कितना था प्रोजेक्ट का। ओके, रीजंस। अच्छा, हम ये क्यों करते हैं? अंडर अचीवमेंट इफ द डिजायर टारगेट आर नॉट अचीव्ड। ओके, अगर आप डिजायर आप जो टारगेट है वो अचीव ना हुआ तो आप फिर अंडर अचीवमेंट रह जाते हैं। डिले इफ देयर इज द टाइम और रन इन द प्रोजेक्ट, या फिर आपकी डिले हो जाती है, टाइम ज्यादा आप जो है ना आपका रिक्वायर जो टाइम है उससे आप ज्यादा लगाते हैं, तो ये चीजें देखने के लिए हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ये फाइनल स्टेज है। Project evaluation examines all aspects of the project design and assesses the overall progress toward the ultimate objectives. Okay, type of evaluation में क्या आता है? End of the project evaluation, एक हम जो project end हो जाता है तब हम जो है ना evaluation करते हैं। Post project completion evaluation, और एक जो है ना post project completion, जो एक project पूरा हो जाता है उसके बाद सब कुछ जब खत्म हो जाए उसके बाद हम एक जो है ना प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद बेनिफिट ऑफ पीएसएम। अच्छा, प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट के फायदे क्या होते हैं? पीएसएम इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कैन असिस्ट लोकल ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न मोर फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, improve decision making, streamline communication between various stakeholders, and above all, how far the objectives of the project have been achieved. ये आपके कुछ प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट के फायदे हैं कि आपने पहले जो काम किया है उस एक्सपीरियंस को आप इस्तेमाल करते हो आपकी
डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव हो जाती है। आप ये देखते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने हासिल किया या नहीं। When PCM is applied effectively, the following benefits can be realized. अगर आपका प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आपको फॉलोइंग फायदे मिल सकते हैं। उसमें पहले पहले गोल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, आपकी जो गोल्स है ऑब्जेक्टिव्स है यू कैन इजीली अचीव दैट। ओके, दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन विल बी कोऑर्डिनेटेड एंड ओवरसीन बाय अपॉइंटेड प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड नॉट बाय दोज रैंडमली पिक्ड विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन। अच्छा, प्रोजेक्ट की आपकी जो कोऑर्डिनेशन है, जो प्रोजेक्ट की आपकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है वो कौन देखेंगे? दे विल लुक आफ्टर द प्रोजेक्ट मैनेजर। वो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होगा कि वो आपकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन सारा कुछ देखेगा। Sound and objective appraisal. The project will be designed and appraised based on the sound research and feasibility criteria and not on the voting and consensus which does not capture the availability issues. Okay, आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी फिजिबिलिटी और उसका जो रिसर्च है उसकी जो फिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इट शुड डिपेंड ऑन द रिसर्च। ये रिसर्च पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि कोई भी ऐसे आप जो है ना कंसेंसस वगैरह वोटिंग करके ये करते हो। ओके, long term planning. PCM improve long term planning because the policy setting stage includes strategy review of long term goals and objectives. Increased accountability. There will be increased accountability for the result because individuals and teams will be assigned specific results that they must deliver. Okay, उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड मेथड एंड प्रोसीजर्स। अच्छा, जब आप पीसीएम सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके जो मेथड्स है प्रोसीजर है वो भी स्टैंडर्ड होंगे। आप कोई भी जो काम करेंगे ना वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई भी स्टेप आपसे मिस नहीं होगा। यू विल हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन प्लानिंग एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपकी जो रिसोर्सेज है वो सही तरीके से इस्तेमाल होंगे, एफिशिएंसी होगी, आप कम बजट में जो है ना ज्यादा काम कर सकते हैं। उसके बाद स्टेक होल्डर ओनरशिप, दिस इज इनहांस बिकॉज पीएसएम इज अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होगी, सब कुछ जो है ना आपका एक एक स्टेप बाय स्टेप आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी प्रॉपर। उसके बाद इनहांस्ड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जब आपकी पीसीएम सही होगी तो आपकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी सही होगा। जो भी आपका एक फेज गुजरेगा उसकी फौरन से मॉनिटरिंग होगी, इवैल्यूएशन होगी, तो आप स्टेज बाय स्टेज स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की तरफ जाओगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट। इसके कुछ हमने जो है ना स्टेजेस डिफाइन किया और उसके बाद कुछ बेनिफिट्स डिफाइन किया। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस and if you have any question you can ask me. Okay, thank you so much.